السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دوستو لائے ہیں آپ کے لیے عمران خان صاحب کی سائفر کی وجہ سے جب حکومت گرائی گئی تھی تو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ سازش کی گئی ہے بیرونی سطح پر بھی اندرونی سطح پر بھی۔ بیرونی سطح پر امریکہ کی طرف سے سائفر آیا اور اندرونی سطح پر یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں بڑے بڑے، انہوں نے جو ہے نا ملی بھگت کر کے میرے ایم این ایز کو مل کے لے دے کر کے اپنے ساتھ ملایا ہے۔ وہ سندھ ہاؤس میں کافی عرصہ بیٹھے رہے، یہ سارا ایشو آپ سب کے سامنے ہے۔ آج تک کبھی مداخلت، کبھی سازش، کبھی اندرون معاملہ، کبھی بیرون معاملہ، یہ سارے حقائق سامنے آتے رہے، لیکن یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا ہے اب کہ کل رات مولانا فضل الرحمان سے سچ نکل گیا ان کے منہ سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا سچ اور عمران خان کی جیت، اور ہمیں بحیثیت عوام اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر کل بھی سچا تھا اور الحمدللہ آج بھی سچا ہے، اور الحمدللہ اپنے ہی مخالفوں کے منہ سے وہ سرخرو ہو گیا، سچا ثابت ہو گیا۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے جو گزشتہ رات آئی، اور وہ ندیم ملک صاحب نے پروگرام کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس کے اندر خبر باہر آئی ہے اور خبر بہت بڑی ہے۔ یعنی یہ پاکستان کے اندر آپ کہیں کہ بھونچال آ گیا اس خبر سے، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ جو ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف ساری پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ تھا، وہ آرگینک تھا، یا وہ قدرتی طور پہ جیسے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت چلی گئی۔ یہ ایک تاثر دیا جاتا تھا، یہ بات بار بار کی جاتی تھی، بلکہ اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ ایکچولی عمران خان کو ہمیشہ بچانے میں ہمارا کردار ہے، عمران خان کی حکومت گرانے میں ہمارا کبھی کوئی کردار نہیں تھا، اور ہم کبھی چاہتے بھی نہیں تھے۔ یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک موو کیا، اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اس کے برعکس ایک بیانیہ بناتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا ہے، اور اس سازش کے اندر وہ امریکہ کو بھی الزام دیتے تھے کہ امریکہ کو کیونکہ عمران خان صاحب پسند نہیں تھے سرٹن ریزنز کی وجہ سے۔ اس کی گہرائی میں پھر کبھی کسی ویلاگ میں جائیں گے، بتائیں گے امریکہ کو عمران خان ناپسند کیوں تھے، اس کے اوپر ایک الگ ویلاگ کریں گے۔ لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پہ امریکہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، تو ایک اختلافی صورتحال پیدا ہو گئی، اور ان دونوں دھڑوں نے مل کر ایک سازش کر کے مجھے حکومت سے بے دخل کر دیا، اور میری حکومت گرائی گئی ہے۔ میری حکومت جو ہے وہ از خود آرگینک طریقے سے، یا جو قدرتی طریقہ ہوتا ہے یا نیچرل وے میں میری حکومت نہیں گری۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایک جمہوری پروسیس تھا جس میں حکومت عمران خان کی چلی گئی، بلکہ عمران خان کے بقول یہ جمہوریت جو ہے وہ صرف دکھانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پروسیس یا ایک پارلیمانی طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے وہ یہ کہتے تھے ایک سازش ہے۔ اس سے ہمیشہ ڈینائی کیا گیا، سازش نہیں ہے۔ پی ایم ایل این یہ کہتی رہی کہ ہم نے خود کیا ہے۔ بلاول نے یہ کہا کہ میں نے نکالا ہے عمران خان کو، ہم نے نکالا ہے، میں لیتا ہوں یہ الزام۔ کہتے ہیں نا کس نے سازش کی تھی، تو بلاول نے کہا میں نے سازش کی تھی۔ تو اپنے اوپر الزامات لے رہی تھی سیاسی جماعتیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کیا ہے یہ، اور اس کے اندر کوئی سازش کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے۔ تو آج اس دور میں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اب پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا یہ تصدیق کر رہے ہیں ان ساری باتوں کی جو عمران خان صاحب نے کی تھی۔ اب کچھ بڑے بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے، اس بیان کا انالیسس کرتے ہیں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل ریٹائر باجوہ اور جنرل ریٹائر فیض، ان دونوں نے ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی اور انہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے کہا، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان سے بھی کہا گیا تحریک عدم اعتماد کے لیے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس وقت اگر میں پیچھے ہٹتا اور میں یہ نہ کرتا ان کے کہنے پر، تو یہ تاثر بنتا یا کہا جاتا کہ میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں یا میں عمران خان کو بچا رہا ہوں۔ تو فضل الرحمان صاحب تو آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے سخت مخالف تھے، عمران خان صاحب ان کو جلسوں میں ڈیزل کہہ کے پکارتے تھے، وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ کے پکارتے تھے، ابھی الیکشن تک ایسے ہی چلتا چلا آ رہا تھا۔ تو فضل الرحمان صاحب نے کہا اور کنفرم کر دیا کہ واقعی میں جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ سیاسی دماغوں کی اختراع نہیں تھی، یہ فضل الرحمان صاحب کا کلیم ہے۔
वो ये कहते हैं ये फैसला कहीं और हो चुका था बंद कमरे में, और इस फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए सियासी जमातों को कहा गया। फजल रहमान साहब कंफर्म कर रहे हैं कि सियासी जमातों ने सिर्फ रबर स्टैंप का काम किया, सिर्फ मोहर लगाई, असल काम हो चुका था और इमरान खान को निकालने का फैसला हो चुका था। अब ये उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक वो घिनौना इल्जाम है जिसकी पादाश में बहुत सारे लोग सजा काट चुके हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, देखें, यही कहानी हमने बताई थी ना लोगों को। अरशद शरीफ ने भी यही बात बताई थी, साबिर शाकिर ने भी यही बात बताई थी, मोहित पीरजादा ने भी यही बात बताई थी, दीगर बहुत सारे सहाफी हैं, सदीक जान ने उसने भी यही बात बताई थी, समी इब्राहिम साहब उन्होंने भी यही बात बताई थी, और जो दोस्त हैं बहुत सारे हमारे दर्जनों की तादाद में, उन्होंने यही बात बताई थी। जिसने ये बात की थी उसको मेरे को ज्यादा भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोग आज पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारे हालात उनके अच्छे नहीं है। जितने लोग ये बातें करते थे उनमें से कोई भी शायद नौकरी पे भी नहीं है, तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो सारे सहाफी जो ये बात करते थे कि ये जो सारा मामला था ये खालिसतन पॉलिटिकल मामला नहीं था, आज फजल रहमान साहब ने तस्दीक कर दी है इमरान खान के मौकिफ की, उन तमाम सहाफियों के मौकिफ की जो ये बात करते थे। और वो जितने सहाफी हैं जो ये कह रहे थे कि ये बड़ा ऑर्गेनिक है, वो जो ये कह रहे थे कि ये सियासी एक तहरीक के नतीजे में हुआ है, उन सारे सहाफियों के लिए आज मुकाम है इबरत का कि आंखें बंद करके यकीन ना करें, तहकीक कर लिया करें। फजल रहमान साहब ने आज तस्दीक कर दी है, फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें चंद सवालात पैदा हो गए हैं। एक तो उन्होंने कह दिया इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, और सियासतदानों ने नहीं गिराई थी, उन्होंने इल्जाम जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब पे लगा दिया था। और जनरल फैज साहब की तरतीब भी आ गई, वो कह रहे हैं जी मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैं तो कोर कमांडर पेशावर था। अब ये तरतीब भी अपनी जगह में मौजूद है, लेकिन सबको हक है अपनी बात कहने का। अगर फजल रहमान साहब अपनी बात कह रहे हैं तो पूरा हक है जनरल बाजवा को या जनरल फैज को अपनी बात कहने का। डेमोक्रेसी तो यही होती है ना। अब जो दूसरे तीसरे लोग हैं वो भी अपनी बात कर सकते हैं, यानी शहबाज शरीफ को भी हक है, बिलावल को भी हक है कि वो अपनी बात रखें सामने कि क्या उस वक्त तय पाया था, क्या हुआ था। जो जहां तक मुझे समझ आ रही है ना, आने वाले वक्त में बिलावल भी फटेंगे एक दिन और वो भी बहुत सारी चीजें बोलेंगे। जिसको तकलीफ होगी ना वो बोलना शुरू हो जाएगा। आज फजल रहमान साहब क्यों बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फर्ज करें फजल रहमान साहब को 15 सीटें मिल जाती, 10 से 15 सीटें जिनकी वो तवक्को कर रहे थे फजल रहमान साहब की उनको मिलेंगी कौमी असेंबली की, वो उनको नहीं मिली, फिगर भी उनका 4 के करीब घूम रहा है। तो एक तो उनको मायूसी हुई। फर्ज करें अगर फजल रहमान साहब के लिए भी धांधली उसी पैमाने पर होती है जिस तरह नवाज शरीफ के लिए धांधली हुई है, तो क्या फजल रहमान साहब ये सारा पोल खोल रहे होते या ये सारी बात कर रहे होते? तो इसका साफ जवाब है कि नहीं। फर्ज करें फजल रहमान साहब के बगैर हुकूमत ना बन रही होती वफाकी, और उनको बहुत सारी वजारतें ऑफर होती या उनको सदर पाकिस्तान का ओहदा मिल जाता, तो क्या वो ये सारे पोल खोल रहे होते, सारी बातें खोल रहे होते? तो उसका भी जवाब है कि नहीं। देखिए ये जो फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब है ना, इनके बीच में पैगामबाजी का सिलसिला कुछ अर्सा पहले शुरू हो चुका था। आपको याद होगा फजल रहमान साहब के घर पे एक फौतगी हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द किया था वहां पे दुआ करने के लिए। मेरी इत्तला के मुताबिक इनकी वैसे भी एंगेजमेंट होती रही है फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ, और तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान साहब को पहले बता दिया था कि आपके साथ धोखा होगा। नवाज शरीफ धोखाबाज हैं, उन्होंने आपको इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, और आपको कुछ नहीं मिलेगा और सारा कुछ नवाज शरीफ कमाने की कोशिश करेंगे। तो हुआ भी यही कि जितनी धांधली हुई, जितना जोर लगाया गया, वो पंजाब में नवाज शरीफ के लिए लगाया गया। फजल रहमान साहब बेयारो मददगार रहे और वो अपनी नशिस्तें हार गए, क्योंकि नून लीग की कारकर्दगी जैसी थी 16 महीनों में, उस कारकर्दगी का सारा बोझ सबके ऊपर पड़ा, लेकिन नून लीग को धांधली से जितवा दिया गया और फजल रहमान साहब जो है वो पिस कर रह गए। पीपल पार्टी को भी ठीक ठाक फायदा हुआ, उन्होंने अपना, आप देख लें किस तरह कराची के अंदर सिंध के अंदर धांधली होती है, तो वो भी निकल गए। एमकेएम को जैसे सीटें दिलवाई गई वो तो यानी वो तो यही कहेंगे कि कमाल हो गया, और वो तो कोई नेगेटिव बात करेंगे नहीं। हालांकि एमकेएम को अगर सीटें ना दिलवाई जाती तो वो भी बोल रहे होते, लेकिन फजल रहमान साहब बोले हैं, उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, और जब उनका काम मुकम्मल हो गया तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया, और अब उनको सीटें भी नहीं दिलवाई जा रही। ये तो है जनाब फजल रहमान साहब। मैंने कल सुबह के वीलॉग में एक बात की थी, आपको याद हो तो, कि फजल रहमान साहब को इसलिए भी सीटें नहीं दिलवाई गई कि कल को पोल खोल देते हैं, जैसे इन्होंने आज पोल खोल दिया है। हर बात उन्होंने बता दी है कि जनाब इस तरीके से सारा मामला तय हुआ था। तो ये हम सबकी बातों की तस्दीक कर दी फजल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फजल रहमान साहब तो बहुत जमहूरी है और जमहूरियत में यकीन रखते हैं, पीपल्स पार्टी बहुत जमहूरियत में यकीन रखती है, पीएमएलएन तो उनका रवैया और तरह का इक़्तिदार की सियासत करते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये सियासी जमातें क्यों इस्तेमाल हुई एक ऐसे काम के लिए जो गैर जमहूरी था। यानी अगर गैर जमहूरी हुकूमत इनको कह रही है कि ये वाला काम करो, तो इन्होंने वो काम क्यों किया, ये क्यों इस्तेमाल हुई, ये बड़ा सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए।
इन्होंने तो खुद बता दिया कि हम कौम के मुजरिम हैं। हमने अच्छी खासी चलती हुई इकोनॉमी, अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत, माहौल बेहतर की तरफ जा रहा था पाकिस्तान का, उसको तबाह किया, उसको गिराया एक ख्वाहिश के मुताबिक, और उसके बाद पाकिस्तान की हालत बद से बदतर कर दी। ये तो एतराफ जुर्म है जो किया जा रहा है। इलेक्शन इस तरह का हुआ पाकिस्तान में कि अब सब लोग जो है वो उस पर उंगली उठा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा तो कीचड़ के अंदर गुस्सा हो गया सारों का। खुर्रम दस्तगीर नून लीग के बहुत करीबी है, वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बहुत मुतनाज़ इलेक्शन है। वो भी सच इसलिए बोल रहे हैं कि वो खुद भी इलेक्शन हार चुके हैं। तो इलेक्शन हारने वाले हर शख्स को जो है वो हकीकत नजर आ रही है, और जीतने वाले जो हैं, चाहे उनको जिताया गया हो, वो खुशियां मना रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात हो रही है। असद कैसर दोबारा मौजूद हैं, पार्टी के बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, उमैर न्याजी साहब मौजूद हैं। तो ये बातचीत चल रही है। देखना ये है कि इसमें नतीजा क्या निकलता है। देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये है कि अंदर जो बातें तय होंगी वो बातें कभी भी बाहर आकर नहीं बताई जाएगी, क्योंकि हालात बहुत अजीब से हैं। फजलुर रहमान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इस धांधली के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनके ये धांधली की नहीं गई ना। देखिए, फजलुर रहमान के खिलाफ धांधली नहीं हुई, धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है। लेकिन धांधली में फायदा पहुंचाया गया नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान साहब को फायदा नहीं पहुंचाया गया। इस चीज की वो तकलीफ है। और अब वो जो है वो एक दूसरी तरफ की सियासत करेंगे, एंटी PMLN या एंटी PDM। कल तक वो उसी के सरबराह थे, उन्हें लग रहा था उनको सदारत का कोई बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। अब देखना यह है कि फजलुर रहमान साहब को क्या दिया जा सकता है खामोश रखने के लिए। लेकिन जो उन्होंने कर छोड़ा है ना, जो फैक्ट्स उन्होंने बता दिए हैं, देखिए फजलुर रहमान साहब 2-3 दिन से इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो हल्की हल्की डोज बढ़ा रहे थे और इंतजार कर रहे थे उनसे राब्ता किया जाएगा, उनसे राब्ता किया नहीं गया। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने आके सारी बातें वो बता दी जो बातें शायद वो कभी ना बताते, और ये बातें बताने से तमाम सियासी जमातों का भारी नुकसान हुआ है। और पाकिस्तानियों का ये मौका, यानी जिस पाकिस्तानी ने आज इमरान खान को वोट डाला ये सोचकर कि इमरान खान को साजिश के तहत निकाला गया था, उस पाकिस्तानी को फख्र होगा कि उसने ठीक वोट डाला है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक और बात क्लियर कर दी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ तो तहरीक इंसाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। हद तक इन्होंने MQM का नाम भी लिया, MQM के साथ भी वो इत्तेहाद फिलहाल तो नहीं कर रहे। और चौधरी परवेज इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बारे में भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मुलाकात भी बड़ी मानी खेज है। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन को भी लगता था कि उनको जो कुछ मिलेगा वो नहीं मिला। चौधरी शुजात हुसैन साहब ये सोचकर बैठे थे कि 10 नशिस्तें उनको भी मिलेंगी। अलीम खान साहब ये सोचकर बैठे थे कि 40 नशिस्तें उनको मिलेंगी, उनसे वादा किया गया। लेकिन ना अलीम खान साहब की पार्टी को 40 नशिस्तें मिली, ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को जो है वो 10 से 15 सीटें मिली, ना काफ लीग को 10 सीटें मिली। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है।